Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. रणवीर सिंह है सच अ लवर बॉय ही इज ऐसा कोई प्यार करने वाला मिल जाए मजे ही आ जाए लाइफ के। कुछ लोगों के तो बस पैसे खर्च हो रहे हैं, आ कहाँ से रहे समझ ही नहीं आता। मतलब हस्बैंड क्या करता है पता ही नहीं, बीवी क्या करती है पता ही नहीं, बस पैसे खर्च हो रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री में, एंकरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेक अभी कौन लगता है? कौन सी फीमेल है ना बेबी? ओ ये 5 लाख के लिए मैंने इस मॉल की मैं उससे लिया। उसी रोज ही घटिया घटिया सारे डीएम आते रहते हैं। लोगों को कोई काम नहीं बैठ के डीएम में यूर हॉट यूर सेक्सी लेट्स मीट फॉर कॉफी ये वो करते हैं। अरे यार अपना काम करो ना यार। अब 10 में से 10 हीरोइनें हैं, 2 साल की 10 सुंदर है और सब सेम लगती हैं। उनके तो जो करना करो खुश रहो, जो करना करो खुश रहो, हमें हमारे बच्चे दुखी नहीं दिखने चाहिए। Hi, this is Amanpreet Wahi and I welcome you to yet another exciting, fun-filled episode of our podcast on Edge Talks. And today we have a very, very special guest. I know him since 20 years and I know I keep saying this, that I know this person since 15, this person since 20. It only means I'm forever 21. But welcome to the show, Pragya Tiwari. Welcome to our podcast. Thank you so I'm much. so Thanks a lot. excited to have you here because am we are I. going to have a cracker full of show. I Lots of dhamaka, am already lots of trying to. controversies, lots of bomb blast revelations. वही नहीं करना। I'm trying to keep calm so that I No, don't no, just no. That's keep not on allowed. blabbering things, saying things I shouldn't So be Pragya, saying. welcome to the show. Say hello to our audience. Hi, my name is Pragya Tiwari and I'm such a big fan of you. It is like, so ever since I've been in this industry, I've always looked up to you and my wanted to God. become like you. And today I'm sitting with you, sharing the same stage and sharing a platform which Absolutely. I had no plans for. This feels amazing. Oh my so God. happy it is and delighted to be absolutely here. a pleasure to have you here. So Pragya, please tell us, I kind of know where you started from, but please tell our audience how you started this journey of being such a successful anchor and कब ऐसा लगा प्रज्ञा को कि okay, this is my career path. All right, this is a long story, but I'll try to cut it short and make it crisp and short. It was when I was in school. I had completed I had given my boards, 10th boards का एग्जाम, एंड उसके बाद वो लंबी वाली छुट्टियाँ हो जाती है ना, सो आपको फिर बहुत कुछ मिलता है टाइम करने के लिए। तो उन दिनों में आई हैड ऑडिशन फॉर द फर्स्ट सीजन ऑफ दिस शो कॉल्ड जी सिनेस्टार्स की खोज करके एक जी टीवी पे शो आया होता। तो उसमें बताते थे कि जो जीतेगा उसको मुंबई ले जाएंगे और उसको हीरोइन बनाएंगे। तो मैं कहा यार ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो मैंने सोचा मैं अप्लाई करती हूँ, बट फिर अप्लाई करने के लिए फिर हमने पता किया कि उसमें फॉर्म भरते हैं, उसमें नॉर्मल फ़ोटो नहीं, आपको स्टूडियो पोर्टफोलियो फ़ोटो चाहिए। तो it is again another story that we did not have 150 rupees to get those photos clicked then. Yes. And all my friends contributed थोड़ा थोड़ा पैसा, and we all पैसा जमा करके भी हमने इकट्ठे किए 300 रुपये, पोर्टफोलियो शूट कराया, and I gave my entry. I didn't win it, that's another story. काफ़ी सब उनका चीटिंग वीटिंग करते थे ये लोग, बट देन दैट रियली it really gave me that thing कि how can they just do cheating and give favors to their own people, and we can also be as good as them. And that is when I decided that I don't want to continue with my academic career, and I want to make a career into this industry. And I shifted to Delhi, and then I met you, and I started as a model. But the first 1.5 years as a model, it was okay, ठीक था. But very soon, I think within a year of modeling career, I realized that I cannot be a very good model. As in, I cannot make it very, very big into modeling because I was not that petite and I was not that tall. So I thought that maybe I'll use my other skill, which is talking, and make a career out of it. And then I decided to that. So what was that first बड़े event की opportunity कैसे मिली? Oh, it is a very interesting story. So I used to be working as a freelance event team thing in Lucknow. And we had this very big event. Lucknow महोत्सव होता है, बहुत बड़ा शो होता है, मतलब वो साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। आई वॉज बैक स्टेज मैनेजर, और वहाँ पे श्रेया घोषाल आ रही है सिंगिंग करने के लिए, एंड मतलब वहाँ फैशन शो था किसी बहुत बड़े डिज़ाइनर का, जिसमें फ्लर जेवियर, नीना मैनुअल एंड ऑल ऑफ दीज, जस अरोड़ा वो मॉडलिंग, इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्मिंग, ऑल ऑफ दिस. सो देयर एंकर आई थिंक मिस्ड देयर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, एंड देन बाई रोड पहुंचना बहुत मुश्किल था. एंड उस वक्त मैं छोटा छोटा कुछ ऐसी ऑटो एक्सपो में और इधर उधर रोड शोज में हल्का फुल्का एंकरिंग का करती रहती थी काम. सो उनके जो ऑर्गेनाइजर थे उसने बोला कि तू ये शो होस्ट करेगी.
और मैंने कहा कि मैं ये शो कैसे होस्ट कर सकती हूँ, मतलब इतना बड़ा स्टेज, सम 25,000 पीपल एंड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, आई हैड नेवर डन दैट बिफोर, मतलब छोटा मोटा मैंने किया था और वो मुझे लगा शायद मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मुझे लगा मैं शायद उसके लायक भी नहीं हूँ तब, बट उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास ये सब बात करने का टाइम भी है ना, ऑप्शन है, अभी कुछ नहीं, अभी तुम्हें ही करना है, एंड दे जस्ट took me to the green room and I was sitting anxious and nervous. They got me ready, and then when I looked in the mirror I was like, So that was the first time कि पहली बार स्टेज गए माइक पकड़ा दिया? नहीं, उसके पहले मैंने छोटे छोटे रोड शोज, बट दैट वाज माय बिग ब्रेक बिकॉज दैट इज वेयर आई नर्वस या कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल? वेरी नर्वस, बट जब उन्होंने मुझे रेडी किया ना और मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा ये मैं हूँ, मैं ऐसे भी लग सकती हूँ, मैं कहा ये तो बढ़िया है यार। फिर जब एक बार स्टेज पे जाने के 10 मिनट बाद वो नर्वसनेस है वो सब चला गया, एंड देन इट वाज अ हिट शो, एंड देन आई स्टार्टेड टू गेट बिग इंक्वायरीज ऑफ दिल्ली एंड बिग मेट्रो सिटीज का। उसके पहले मैं वही अपना गली मोहल्ले में छोटे मोटे रोड शोज और So Pragya, this is a very standard dialogue of our industry. All of us have gone through it. I am sure you have too. No, you're thinking of something else. वो बाद में पूछूंगी कि आप अभी फ्री में काम करो, हम आपको बहुत एक्सपोजर देंगे. How do you handle these kind of situations? यार मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली और एक 5-6 साल में मेरा रिटायरमेंट आएगा, तो अब मुझे और एक्सपोजर की जरूरत नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है. गिव मी मनी फॉर व्हाट आई एम डूइंग. Talk to me about money only. No exposure. I don't need any more exposure. मेरे को क्या एक्सपोजर देंगे? मतलब ठीक है, अगर मैं आज आई होती या 1 साल पुरानी एंकर होती और मुझे कोई नहीं जानता और मुझे काम की जरूरत होती, तो शायद वो एक्सपोजर वाला ट्रिक काम भी आता. बट अ पर्सन लाइक मी, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 decades नाउ, आई डोंट नीड एक्सपोजर, आई नीड मनी, एंड घर का खर्चा नहीं चलता एक्सपोजर से, पैसे चाहिए बिल भरने के लिए. So you know Pragya, I started off as an anchor, then I became a supermodel, and then also जब भी कभी टाइम मिलता था मैं कॉर्पोरेट एंकरिंग करती थी. कॉर्पोरेट एंकरिंग बड़ी इजी होती है. ओके, यू हैव टू लुक लाइक अ बार्बी डॉल, यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, ठीक है, इतना नहीं करना होता, एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट रिटन. अब आपकी एंकरिंग काफी डिफरेंट है, यू हैव टू इंटरेक्ट अ लॉट विद योर ऑडियंस, आपको हंसाना भी पड़ता है. उल्टा है मेरे नजरिए से. कॉर्पोरेट एंकरिंग अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अवार्ड शोज, नॉट डीलर्स मीट, वहां पे ओके आई कैन अंडरस्टैंड. तो शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना या शोज में मिलना या लोगों को हंसाना? कुछ भी नहीं. अच्छा. God has been very, very extremely kind. The moment I started doing anchoring and I thought कि यही मुझे करना है, मुझे बहुत अच्छे से ये करना आता रहा और वो बेटर होता रहा. एंड आई वुड ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल द गुड वर्क दैट आई डू टू नितिन, बिकॉज ही इज द वन हु लॉन्च्ड मी एंड ही इज द वन हु trained me. So in the first year of my career, when I was doing work only for him and with him, I used to travel with him and I used to work with him, and even if I am not working, I used to be at the events to you up, no? अगर कभी stage पे आप अटक भी looking at him, I learned everything. And when you learn from the best of the best, then there is nothing which can bother you. Correct. So I think it's because of Nitin's talent which I got थोड़ा सा blessing. तो मुझे जरूरत नहीं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कैसे होगा या कुछ ठीक नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसे. फ्लॉलेस, हमेशा से इजी एंड फ्लॉलेस. तो बॉलीवुड में एंकरिंग या कॉमेडी करना जितना ग्लैमरस लगता है उतना होता नहीं है. इतने पॉलिटिक्स भी होता है, नेपोटिज्म. तो कभी आपको फील हुआ कि यहाँ नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म ही ज्यादा चलता है? बहुत ज्यादा चलता है. या मुझे लगता है कि ये हर इंडस्ट्री में होता है, बट हमारे इंडस्ट्री में तो कुछ ज्यादा ही है. और कॉमेडी की तो क्या ही बात करें, हमें भी गवर्नमेंट ना पकड़ने लगे. मतलब आई थिंक I would want to say it, but I will still refrain from saying it. It's very sad. I don't want to go to jail. It's very sad. Yeah, they're not putting me in jail for this. But there's so much happening around. उसके लिए किसी को जेल नहीं डाल रहे. रोज रेप्स हो रहे हैं, रोज चोरियां हो रही है, रोज कत्ल हो रहे हैं. वो से कोई लेना देना नहीं है. All that you are focusing upon is somebody has said something which is horrible and they should be definitely blamed for it. For sure. But putting them under a lot of pressure and putting their families into risk, I don't know. So yeah, favorism, yes. One reason why all this is happening is also favorism. Yes. Because there's this a boy who's a nobody who comes from no support and his podcast background. Became so famous and he became such a and he good YouTuber. उसको बड़े-बड़े चैनल से भी ऑफर्स आए थे कि उसके चैनल के साथ, क्योंकि उसका शो बहुत पॉपुलर था. बट चैनल के साथ ही, और चैनल जो सारे मिलके नहीं कर पा रहे उसने अकेले कर दिया, तो उसको डुबा दो. तो ये हमारे साथ भी होता है. आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में आपका टैलेंट और आपकी प्रेजेंटेशन
जितने इम्पोर्टेंस उसको दी जाती है उसके बराबर की इम्पोर्टेंस आपके कॉन्टैक्ट्स को भी दी जाती है. सो एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट टीम. सो अगर मैं प्लानर हूँ तो यही एंकर मेरे प्लानर मेरे शोज करेगी, यही डीजे मेरा, जैसे कि हम उन्हीं लोगों को बेचते हैं. तो ये सबके ग्रुप्स बने हुए हैं और सब अपने अपने ग्रुप में काम करते हैं. कुछ बाहर से भी काम आ जाते हैं, बट मोस्टली देयर इज ग्रुपिज्म. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड व्हाई वुड आई नॉट अग्री टू दिस? मेरे भी दोस्त हैं जो सिर्फ मुझे काम देते हैं, जो किसी और को नहीं देते हैं. तो इवेंट एंकरिंग एक ग्लैमरस करियर लगता है, पर असली स्ट्रगल क्या होती है जो लोगों को नहीं दिखती? बहुत होती है. यू फॉर ऑल द पीपल विल नो इट, बिकॉज लोगों को क्या दिख रहा है कि इतने अच्छे दिख रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और पार्टियों में जाके पार्टी कर रहे हैं और उसके पैसे मिल रहे हैं. बस बोल के आ गए और पैसे सोने को नहीं मिलता, आपको अपने बच्चों को टाइम नहीं देने को मिलता, आपको पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता, हस्बैंड के लिए टाइम नहीं होता, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं होता, खुद के लिए टाइम नहीं होता, बिकॉज योर लाइफ इज सो रिवॉल्विंग अराउंड दैट करियर ऑफ योर्स दैट यू हैव नो टाइम. अच्छा, थोड़ा टाइम मिल भी जाए तो उसमें आपको फिर अपनी प्रिपरेशंस करनी है. ये जो इतना सारा सुंदर सुंदर दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे खर्चे होते हैं. Maintenance of your outfits, your hair, makeup, your clothes, your body, it all is very difficult. So as they say, the grass is always greener on the other side. It is. Nothing comes easy. सब अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, तभी कुछ भी होता है. So प्रज्ञा, जब आप you do a lot of wedding shows also, and especially आजकल तो weddings इतनी destination weddings हो गई है, तो organizers की क्या extra demands रहती हैं कि hello मेरी girlfriend बन के जाना चाहिए इन 2-3 दिनों के लिए, आप काम भी करेंगे और मेरी girlfriend भी रहेगी. extra demands. पहली बात कि 2-3 की कोई girlfriend नहीं होती, ठीक है? So let's not try to make it respectful. It is dirt, and yes, it is definitely there. मेरे साथ ये नहीं होता, पिछले शायद 10-15 सालों में नहीं हुआ, क्योंकि I am at a level where people can't dare to ask. बट या नए लोगों के साथ होता है. जब मैं नहीं थी मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन इट्स अ चॉइस, सो यू हैव टू चूज. आई चोज टू वर्क विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. चाहे काम मिले चाहे ना मिले, मेरे घर में खाने को रोटी मिल जाएगी. तो मैंने इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, उल्टा मैंने 2-4 लगाए हुए होंगे. अब हाँ, और मतलब देख रहे हैं वो जिनको लगी है तेज, अगर देख रहे होंगे कभी तो उनको शायद याद होगा. So I'll share an experience. So there was this one event and I had gone there to perform. और between the free time जब आपके पास काम नहीं है और भी, so मुझे बहुत डायरेक्टली मेरे फेस पे one of the main family members ने ऐसा कुछ उल्टी सीधी बात करी, and I got so furious that I literally slapped him. And then a lot of people gathered, क्योंकि वो फैमिली का एक जैसे भाई ऑफ द ब्राइड, सम लाइक नहीं भाई नहीं, वो एल्डर था. सो मे बी ताऊ जी और चाचा जी और सब, मतलब कोई 30-40 साल टाइप्स का. तब मैं 17-18 साल की थी. तो मैं तब अब मैं 30-40 की हूँ. 60-70 एल्डरली बोल रहा हूँ. अब मैं 30-40 की, तुम्हें लगता है 30-40 होके होता ना, तब मैं 17-18 साल की थी. मैंने चांटा ही दिया. और फिर बहुत सारे लोग आगे क्या हुआ, मैंने उसको ही बोला कि बता दो क्या हुआ, बता दो सबको मैंने क्यों मारा तुम्हें. इफ यू हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड टेल दीस काइंड ऑफ शिट थिंग्स ऑन देयर फेस, यू कैन टेल योर फैमिली मेंबर्स आल्सो दैट व्हाई आई हेट यू. बट ऑब्वियसली जो काम उसने किया था वो शर्मनाक था, तो वो बताएगा तो है नहीं, क्योंकि तो नहीं कुछ नहीं, गलतफहमी हो गई थी ऐसी मस्ती मजाक में. तो मैं फिर तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा. लेकिन जितना ये सही है कि ये चीजें होती हैं, उतना ही बड़ा सच ये है कि लोग इस चीज को वेलकम करते हैं. देयर आर पीपल, आई विल नॉट टेक नेम्स, आज भी मैं ऐसे 10 लोगों को जानती हूँ जिनको ये चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर जस्ट हैप्पी एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रपोजल. 2 दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनना चाहे 2 घंटे के लिए, और हाँ बस उनको थोड़ा काम मिल जाए या थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए, दे आर ओके विद इट. बट ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है. इफ दे आर हैप्पी, अगर वो ये सब करके रात को चैन से जाके सो सकते हैं और उनको कोई गिल्ट फील नहीं होता, उनको ये भी पावर ट्रिप होता है ना कि उन्होंने, आप कितनी लड़कियां हैं मार्केट में जो एंकर हैं, जो अच्छा बोलती है, जो अच्छा दिखते हैं, हमने आपको काम दिया है. तो उनका पावर ट्रिप भी होता है ना कि आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए. ये भी एक उनका एटीट्यूड होता है. हाँ, बट ये क्यों आता है? हाँ, क्यों आता है? किसी भी किस्म का एटीट्यूड जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सो इट इज ऑलवेज वाइस वर्सा. आप जैसा बिहेव करोगे, वैसा आपके साथ सामने वाला देगा, फिर आप वैसे ही करोगे. और इस तरीके से लोगों ने जनरलाइज भी करना शुरू कर दिया है. आई स्टिल रिमेंबर, यू विल अग्री टू मी, आज से 15-18 साल पहले जब ये नया करियर, ये करियर्स इतने रिस्पेक्टफुल नहीं माने जाते थे, बिकॉज सारे लोगों को यही लगता था कि ये तो गलत काम ही करती हैं. मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप मॉडल हो, आप डांसर हो, आप एंकर हो, तो उनके लिए आप सिर्फ गंदे काम कर रहे हो. वो धीरे हाँ, तो वो जनरल परसेप्शन बनी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट किया है. तो क्या कर सकते हैं. तो इंडस्ट्री में वैसे तो मुझे इसका आंसर मैं सोच सकती हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में, एंकरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेक अभी कौन लगता है? कौन सी फीमेल? ओह गॉड, सो आप सोच सकती हैं, तो आपको पता है और मुझे भी पता है, आई थिंक सबको पता है ना बेबी.
Oh my god. ठीक है, we'll keep you guessing. So Ranbir Kapoor या Nobody has to guess, everybody knows. There's this only one person who's the amma of all the fake people, and everybody knows it. Everybody knows it, it's just that they don't say it. You also know it. Yes. रणबीर कपूर या किसी और सुपरस्टार के साथ इवेंट होस्ट करते वक्त कोई सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपके सामने आया हो which you want to share with us? Okay, so I've hosted with Ranbir Kapoor, I've hosted with Ranveer Singh, I've hosted with a lot of celebrity actors. But मेरे दो experiences हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, एक positive और एक negative. The positive was with Hrithik Roshan. I was hosting a show for Coca-Cola. He used to endorse Coca-Cola, right? Mountain Dew? I don't know, it was some brand that he endorses. I think it was a beverage only. And he had come and he was so humble. And this is the times I'm talking about, आज से 10 साल पहले जब वो, और अभी भी वो बड़ा है, but उस टाइम पे उसकी बैक टू बैक बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी. He was at the top. So अभी वो सीनियरिटी में भी ऊपर है, but उस टाइम पे वो एकदम सबसे बड़ा सुपरस्टार था. And the way he handled me with those personal, respectful, warm gestures, and the way he showed affection towards everybody, I think I will never ever be able to forget that. Sweet. And one other reason I will never be able to forget him is his good looks. Good looks. Oh my God, people just don't call him Greek god. Yeah, for no like reason. That. He is. Absolutely. He's beyond this planet. कितना सुंदर है यार वो. तो ये इसका आंसर मुझे पता है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस, बट आप बताओ बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इवेंट करने में एंकर्स को पूरी फ्रीडम रहती है या यू हैव टू बी बिल्कुल फ्रीडम नहीं रहती है. अब फॉर दैट मैटर आई वाज होस्टिंग अ शो फॉर कोलगेट विद सैफ अली खान. मैंने इतनी मेहनत करके रात भर जग के पढ़ाई लिखाई करके क्वेश्चंस बनाए इंटरव्यू के लिए. इट वाज लाइक अ कॉफी विद सैफ कॉन्सेप्ट. एंड शो से आधे घंटे पहले उसकी मैनेजर ने मेरा पूरा स्क्रिप्ट कैंसिल कर दिया. नो पर्सनल क्वेश्चन, नो दिस क्वेश्चन, नो दैट क्वेश्चन. मैंने कहा मैं पूछूंगी क्या, सब तो तुमने काट दिया, और 15 मिनट में वी आर ऑन स्टेज. एंड देन आई बिकेम सो नर्वस. आई थिंक दैट वाज माय only time in my career of almost 20 years that I was literally shivering like this, sitting on the chair. ऐसे ही बैठी थी मैं, और मैं ऐसे शिवर करती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या, और मैं मैं कुछ गलत बोलूँ या कुछ उल्टा पुल्टा बोलूँ, because she just cancelled everything. So there are so many unnecessary protocols that they want us to follow, which is useless. तो शादी में जो हुआ एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया, कास्टिंग काउच, तो बॉलीवुड और मॉडलिंग में मुझे यही क्वेश्चन पूरी दुनिया हर रोज यही क्वेश्चन पूछती थी. सो हाउ डू यू हैंडल जब अनएथिकल क्वेश्चंस, कोई प्रोफेशनल, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप काम के लिए रेडी हो, और कोई आके आपको अनएथिकल ऑफर दे दे, हाउ डू यू हैंडल इट? See, the whole point is what do you want in life? I want to get here no matter what. I'm okay for doing whatever it takes to get there. मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं था. मैं बस मजे कर रही थी अपनी जिंदगी में. जो मिल रहा था उसी में खुश थी. बड़ा मजा आ रहा था. तो उस जब जितना मिला ना वही बेस्ट लगता था. जब 10,000 रुपए मिलते लगता था अरे इससे ज्यादा लाइफ में क्या चाहिए. मैं तो मजे की जिंदगी जी रही हूँ. फिर 20 मिलेंगे, फिर 50 मिलेंगे, फिर लाख. वो कभी कम लगा ही नहीं. जितना जब मिल रहा था वो ज्यादा ही था. So for example, I will not name one of the top 3 channels of our country. Ka CEO directly gave me an offer. We were doing this multi-city tour for a singing reality show that the channel produces, and it happened in a way कि the CEO travelled with us. So हमने 4-5 सिटी साथ किए, फिर थोड़ा मिलना जुलना, थोड़ी पार्टी शार्टी, जो एक कैजुअल तरीके से. एंड देन बहुत ही अब्रप्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी कहूँ कि पता नहीं, ऐसे बस मुझे बोला कि तो हीरोइन बना देंगे तुमको तो ये दे देंगे वो दे देंगे, बस तुम खास दोस्त बन जाओ टाइप. तो मैंने कहा सर मुझे हीरोइन बनना ही नहीं है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरी बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है, क्या करूँगी मैं हीरोइन बन के. ऐसे ही ठीक है. एंड द वे दिस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन अ वेरी डिफरेंट वे. उस वक्त मैंने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कह दिया था कि आप क्या मुझे हीरोइन बनाओगे, मुझे बनना ही नहीं है, मैं बड़े मजे. सो माई ऑर्गेनाइजर हु वाज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी हु वाज डूइंग, he sarcastically laughed at me and told me to calm down कि अब मत बोल, ज़्यादा मत बोल. बट मैंने बोला, और बाद में मुझे कह रहा है कि तू पागल है, वो CEO और इस ब्रांड का, इस कंपनी का, उनके सारे टेलीविजन का सब शोज उनके, तू ऐसे कैसे बोल सकती. मैंने कहा
क्या हो गया? बट मुझे लगता है सब लोगों को लगता है कि हमारा हर एक लड़की का एंड गेम है हीरोइन बनना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। मेरा तो सपना We are था, all not मैं crazy बचपन से about- हाउसवाइफ बनना चाहती थी। मैं सीरियल देख के मम्मी के Reaching साथ, Bollywood. मेरे को चाहिए था कि 10-20 लोग एक ही घर में रहे, तो मैं सुबह सुबह गहने और साड़ी पहन के उठूं और किचन में चाय बना के सबके लिए लेके जाऊं। लेकिन कहते हैं ना, आप जो चाहते हो उसका उल्टा होता है। तो जितना मैं हाउसवाइफ बन के घर घर खेलना चाहती थी, उसका ऑपोजिट हुआ है मेरे now साथ। you're flying around the world. Yeah, like So I'm you the man worked of with the. so many Bollywood stars, तो उसमें से सबसे चिल कौन लगा और सबसे टफ कौन लगा? सबसे चिल्ड, सबसे सुपर कूल, सबसे फेवरेट Ranveer Singh. Okay. There is no Yeah. man like that boy. Yeah. Oh my God, he is so cool and so fun and so much at ease. मतलब मेरा पहला जब शो था, मैं बहुत नर्वस थी. He made me feel so comfortable. और उसके बाद तो मैंने दूसरा तीसरा कई सारे कर लिए. अब तो वो दूर से आके ऐसे कर देता तो मैं तो पागल हो जाती. मैंने कहा ये मुझे जानता है, देखो मुझे येलो कर रहा है. So he's a very nice बंदा. I think it's an amazing experience to be associated. But it says to a work lot with for him ना, he never forgot his roots. अगर आप अभी आप देखो कि उसके शुरू के auditions, he's looking like a boy from the streets, like, and now he's a super, but he's never given attitude to anyone who's starting out or who's new. So that says a lot about him. Yeah, I think it also really depends upon the kind of background you come from. Yeah. So he comes from a nice simple family, Yeah. not that famous Bollywood family. yeah. तो आपको जो normal लोग होते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा normality उनके अंदर सस्टेन कर जाता है थ्रू आउट द टाइम. अगर आप बचपन से ही एकदम ऐसे वाह में पल्ले बड़े हो गए, तो फिर आप नहीं, कितना भी बहुत लोग नॉर्मल भी हैं ऐसे, जो दो फोटो आ जाए पेपर में, आई एम द सुपरस्टार नाउ. नहीं. You see actors like Pankaj Tripathi. हाँ, actors- You see actors like Sanjay Mishra. They're great. They're great. Neena Gupta, for that matter, such a brave, fierce Yeah, lady. She is yeah. क्या bold decisions लिए हैं, and बिल्कुल. she is respected. Yes. I mean, obviously, you will never have good things from everybody. Yeah. So अगर आपको 50 से 60% भी positive है, तो बाकी का 40 negative गए बाढ़ में. करेक्ट. सो कुछ बड़े एंकर्स और कॉमेडियंस बोलते हैं कि फीमेल कॉमेडियंस उतनी फनी नहीं होती. सो व्हाट डू यू हैव टू आंसर बैक टू देम? Yeah, I'm not a comedian, but I love comedy and I watch a lot of comedy. Sorry, but I will agree to that. I will have to agree to that. मैं झूठ नहीं बोल सकती. मतलब अगर मैं बहुत सारे फीमेल कॉमेडियंस को, भारती को, सुगंधा को जानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है. बट कितना भी आप कंपेयर कर लो, कपिल शर्मा जो करता है, या I swear, they're सुनील so ग्रोवर. good. सुनील ग्रोवर is Sunil also. Grover, I love him. You Just a cannot fan. just. I don't know. Yeah. I don't know if it is natural or we have just made our thought Yeah, process like. yeah. But male comedians do dominate Yeah, the comedy yeah. sector. Correct. I mean, also- unless it comes to गंदी कॉमेडी जो आजकल पॉपुलर हो रही है, उसमें फीमेल्स. I also kind of But agree. like the good comedy, not the गाली गलौज वाली कॉमेडी Yeah. और below the belt किसी की बेइज्जती करके और गंदी बातें बोल करके कॉमेडी नहीं करो. जो आप नॉर्मल टीवी पे आती हैं जो कॉमेडी, जैसे कपिल शर्मा का शो है, बिल्कुल. थोड़ा सा उसमें भी मजाक होता है, थोड़ी बेइज्जती वो भी करता है, बट इन अ वेरी better way than the Yes. YouTube shows that we see. Correct. So yeah, male comedians are better than female. सो प्रज्ञा, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ काम करने में प्रज्ञा को लगा ओ माय गॉड दैट वाज अ नाइटमेयर? Nightmare. नहीं यार. हाँ, of course yes. Oh, I can say this now. तो it's on national television. So there's this motivational speaker जो अभी harassment के केस में अंदर गया, अपनी बीवी को मार रहा था घर में शायद. Oh What is his God. name? विवेक I बिंद्रा. I don't know. ऐसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत बड़ा. He charges a bomb. अच्छा, उसका ये पुलिस केस होने के पहले ये शो था. अच्छा. Oh God, this guy gave us a tough time to me, to the event managers, to the organizers, to the whole. मतलब he was so full of attitude and पता नहीं क्या ही समझ रहा था वो प्रधानमंत्री है जैसे. और बात तक नहीं कर रहे थे तमीज से. मतलब किसी ने बोला कि एंकर को आप ब्रीफ दे दो सर, आपका इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है. अरे क्या वो एंकर को मालूम नहीं क्या मैं कौन हूँ, गूगल नहीं कर सकती. मतलब आप इतने बदतमीजी से लोगों से बात कर रहे हो और स्टेज पे जाके आप प्रीच कर रहे हो कि सेवा करो, माँ की, बहनों की इज्जत करो, ये करो. मतलब कितने डबल फेस लोग हैं. एंड आई वाज सो फ्यूरियस, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था उसको. चॉपर पे आए भाई साहब, लेट आए, 2 घंटे वेट कराए और ये अपना ज्ञान दे के स्टेज पे 20-25 लाख रुपए लेके घर चले गए. उसके एक हफ्ते बाद ही उसका पुलिस केस हुआ, जब उसकी बीवी ने उसको हरासमेंट के केस में अंदर में. मैंने कहा ये तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. सो या दैट वाज अ नाइटमेयर. सो अगर आपको इवेंट इंडस्ट्री का एक बिगेस्ट स्कैम एक्सपोज करना हो प्रज्ञा, तो व्हाट वुड दैट बी? इवेंट इंडस्ट्री में तो रोज ही स्कैम है और बहुत सारे स्कैम हैं. कौन सा स्कैम है सबको सब पता ही है यार. You're making me laugh so much. People are not fool. They all see and they know things. But yeah, scam like. So what would you consider a scam? Say for example, आप भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो. आप बताओ.
नहीं, मैं आपको पूछूं किस चीज को आप अंडर दैट कैटेगरी ऑफ स्कैम डालोगे तो मैं उसको एक्सपोज कर देती हूँ. लाइक कितने इवेंट्स आजकल जैसे अवार्ड फंक्शंस की देख ले, सब कुछ फिक्स्ड होता है, It's सब पैसे fixed. लेके पैसे अवार्ड दे लेके, रहे हाँ. हैं, यू नो. हाँ, I know it. या I get डिजर्विंग calls. लोगों को नहीं मिलता अवार्ड्स बनाए इसलिए चलो जाते बाकी हैं कि सारे जो लोग अवार्ड्स पैसे दे रहे हैं, छोड़ दो. सबको अवार्ड दे देंगे. आप सिर्फ हमारे ये जितने अवार्ड्स आजकल आते हैं उसमें मैंने कई सारे अटेंड किए हैं, कुछ होस्ट भी किए हैं. सब बिके हुए होते हैं. 1 लाख 2 अवार्ड ले लो, 2 लाख 2 अवार्ड ले लो, 3 लाख 2 अवार्ड ले लो. इनफैक्ट जो हमारे इवेंट इंडस्ट्री का सबसे रेप्यूटेड एंकरिंग के अवार्ड्स होते हैं 3-4, वो बिके तो मैं नहीं कहूँगी बट फेवर्ड होते हैं. बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग गोल्ड हु डू नॉट इवन डिजर्व ब्रॉन्ज के 3-4 लेवल नीचे वाला, एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग सिल्वर हु डेफिनेटली डिजर्व अ गोल्ड. सो या इट्स ऑल स्कैम. इसमें कुछ, इसलिए मैंने कभी किसी अवार्ड में उसमें अप्लाई नहीं किया. सब मुझे कहते हैं फॉर्म भर दो, 25,000 रुपये दे दो, 80,000 रुपये दे दो. मैं कहती नहीं देना, नहीं चाहिए अवार्ड. मेरा अवार्ड मेरा पैसा है, मेरा काम है. मुझे काम दो, मुझे पैसा दो, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए. सो प्रज्ञा, एंकरिंग इंडस्ट्री में नए लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, एंड क्या लोग जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं या ओनली फिर पर्सनल गेन्स के लिए ही आपको हेल्प करते हैं? दोनों चीज़ें हैं. आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू गर्ल्स who somewhere coincidentally मुझे मिल जाती हैं, और sometimes they just call me and ask for guidance and help. So they're both kind of people. There are people who sometimes, so see, for all those people who are well established and already doing very well in their careers, they are charging a lot of money. So कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ आपके पास इतना बजट नहीं होता है, तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो कम बजट में काम करे. अब कम बजट में कौन काम करेगा? कोई फ्रेशर होगा. तो वो उस सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव से अप्रोच करते हैं कि भाई इसका बजट कम है, सो वी आर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, और अपना काम करवाते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको बस नई नई तितलियाँ अपने आसपास चाहिए, तो 2-4 लड़कियों को, तुझे तो एंकरिंग बना दें, तुझे ये बना दें, तो उसको काम भी दे देते हैं. जिसको कुछ नहीं आता, जो स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ गोबर पात देगी, ऐसे लोगों को भी बुला देते हैं. और ऐसे लोगों को बहुत काम मिलता है. मतलब ऑल द यूजलेस talentless people are also getting work as much as the good ones are doing work. The useless ones are also doing work. मत पूछो कितना गंदा है. तो प्रज्ञा, स्कूलिंग कहाँ से की, एंड एंकरिंग से पहले व्हाट वर यू डूइंग और डूइंग नथिंग? सो एज आई सेड 10th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, एंड स्कूलिंग मेरी वाराणसी से ही हुई बिकॉज माई फैमिली लिव्स देयर. सनबीम स्कूल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स ऑफ द होल पूर्वांचल. सारे पूर्वांचल के बच्चे वहीं पढ़ते हैं. आई वॉज वेरी ब्राइट. आई वॉज ऑलवेज लाइक अ 90-95% पर्सन. मेरी फीस नहीं लगी. तो फिर इतनी जल्दी क्यों छोड़नी पड़ी? वही तो कह रही हूँ ना, 6th स्टैंडर्ड के बाद मेरी फीस नहीं लगी कभी भी स्कूल में, बिकॉज आई वॉज ऑन अ स्कॉलरशिप, एंड आई वॉज अ सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सिंस 6th grade until grade 10 जब तक मैं पढ़ी. 11th I was nominated for my school head junior head girl, but life just changed with that show, क्योंकि उन्होंने मुझे निकाल दिया, और मैं जीतना डिजर्व करती थी, और वो जिताया किसको? दिस गर्ल युविका चौधरी. And I will tell you the story about this also. So इसको रखना है कि नहीं रखना बाद में देखना, बट सुनो. So they said कि we will do auditions in every छोटे सिटी, एंड हर सिटी से एक लड़की चूज करेंगे, और फिर बाकी सारी लड़कियों को लेकर के मुंबई में ग्रैंड फिनाले, और उसमें जो जीतेगा उसको एक फिल्म मिलेगी. मैं कहा ओके वेरी गुड. अब वाराणसी से, तब मैं स्कूल में थी, तो वाराणसी से आई ऑडिशन. सो आउट ऑफ ऑल द 15-20 पीपल जो सेलेक्ट हुए थे, उसमें से आई वॉज द बेस्ट, एंड देयर वाज दिस अनदर गर्ल प्रीति पांडे, शी वाज मिस बनारस दैट ईयर. दिस इज 2005 और 6. शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड. तो हम लोग का पक्का था कि या तो तू जीतेगी या तो मैं जीतूंगी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं. अच्छा, हफ्ते भर रिहर्सल करके पूरा एकदम बढ़िया, पूरा ये सब पागल बना के काट दिया हमारा. और लास्ट डे, जिस दिन इवेंट है मेन, उस दिन एक दरवाजा खुलता है, ऐसे फिल्मी सीन की तरह से बाल ब्लोड रह करके सुंदर सी लड़की. हम लोग सोचे कोई हीरोइन आ रही है, ये तो हमें सिखाएगी. वो आके लाइन में खड़ी हो गई. दैट वाज युविका चौधरी. So she wasn't a part of the rehearsals, No, nothing. no. Okay. And you can put this on camera. She's married to a singer. yeah. And I was like कि यार ये हमें सिखाने नहीं है, ये कोई मैम नहीं है, कितनी नहीं है, कंटेस्टेंट है. मैंने कहा ये कैसे कंटेस्टेंट है? ना तो इन्होंने ऑडिशन दिया, ना इन्होंने हमारे साथ एक भी दिन रिहर्सल करी एक हफ्ते तक. कहते नहीं ये कंटेस्टेंट है. अब हम क्या बोल सकते थे? हम तो गवार थे, हमें तो लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती थी तब ढंग से. तो चुपचाप वहाँ पे थोड़ा सा रोए, और फिर सोचे कि चलो यार कोई बात नहीं. सो एनी विच वेज फाइनल शो हैपेंड. शी वॉज गिवन द फर्स्ट विनर. आई वॉज द रनर अप, एंड माई फ्रेंड वॉज सेकेंड रनर अप. सो अगर वो नहीं ऐसे फ्रॉड करते और वो नहीं आती, तो मैं ही विनर होती. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैं खूब रो रही थी, और मैं जाके वहाँ पे सब कैमरों में बोल रही थी. रागेश्वरी वॉज होस्टिंग दैट शो, एंड अनु कपूर वॉज आर जज. नीलिमा अजीम एंड अनु कपूर. सो वो मुझे आके बोले कि बेटे आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा सर ये लोग चीटिंग करते हैं, ऐसे किया. तो उन्होंने बोले कि देखो ये बेटे, ये यहाँ नहीं है, ये हर जगह चीटिंग होगी, और हर मोड़ पे आपको लाइफ में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको साइड कर देंगे, कोई और आपसे आगे आ जाएगा. तो आप इनको ब्लेम करने के बजाय कि ये चीटिंग कर रहे हैं और रोने के बजाय, आप ऐसे बनो कि कोई आपको
साइड कर ही ना पाया, आप उससे बेटर। तब मैंने कहा बाहर में गई डॉक्टरी, तब मेरे को था कि डॉक्टर, और बाहर में गया आईएएस, और बाहर में गया स्पोर्ट्स में, अब मैं यही बनूंगी और अब मैं यही करूंगी। एंड आई जस्ट लेफ्ट आउट ऑफ नो वेयर, आई स्टार्टेड working in this industry, and then I didn't continue with my studies. So that answers your question, Kapil. That is one reason why my industry people call me Sachin Tendulkar, क्योंकि वो भी 10th ही फेल है। मैं फेल नहीं हुआ, मैं टॉपर थी। बिल्कुल। तो क्या एंकरिंग में एंकरिंग करियर में पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना डिफिकल्ट लगता है, एंड इवेंट्स और फैमिली टाइम को आप कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है। आई मीन यू फॉर ऑल द पीपल विल नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम। इनफैक्ट सीजन में तो यू डोंट इवन गेट एन आवर टू स्पेंड विथ योर फैमिली, बट देन इट बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑफ सीजन में वो खुद ही बैलेंस हो जाता है। सो जहाँ आप 4 महीने 1 घंटा भी नहीं दे पाते हो, फिर उसके बाद ऐसे 4-5 महीने आते हैं जब आप 24-24 घंटे आपके पास टाइम ही टाइम है। सो वो बैलेंस हो जाता है। इट्स डिफिकल्ट बट सो इनिशियली मेरे पेरेंट्स तो बहुत कहते थे कि डॉली ये क्या करियर है, अभी मॉडलिंग ठीक है हॉबी की तरह कर लेना, बट इट्स नॉट अ करियर, ये वो। उनको क्या पता हमारे जैसे लोगों के लिए आप क्या हो। जब ग्लैड रैग्स जीती तब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ये भी एक करियर होता है, चलो कर लो। तो आपकी फैमिली में किसी ने ऐसे शुरू में कहा? बहुत सारे। तू ये मत कर, इट्स नॉट सेफ। Not my immediate family, but yeah, rishtedars, they will always have the same opinion, because when I started back in 2006, this was not a very, as I said, flourished career, and for all the people who used to be dancing. Now so everyone wants to be in this career. हाँ, exactly. मतलब आप ऑर्केस्ट्रा वाले हो कि अब यही बचा है कि घर की लड़कियां शादियों में जाके नाचेंगी। मैं नाच नहीं रही हूँ मैं, और अगर नाच भी रही होती तो इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। आई एम तो उनको लगता था कि ये कोई बेकार, मतलब ये बड़ी गंदी सी और बेकार सी चीज़ है, और इसको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली ही देखते थे। बट इट वॉज ओनली फॉर द फर्स्ट इनिशियल 1 or 2 years, जब वो मेरे मॉम डैड को थोड़े ताने मारते थे। बट जब मैं पैसे कमाने लगी, अमीर हो गई और फेमस हो गई, फिर सबके मुंह बंद हो गए। तो फिर ऐसे ही होता है। आई मीन इट ऑल। और शुरू में ऐसे लोगों का एटीट्यूड होता होगा कि ओ माय गॉड अभी आप ज़्यादा फेमस नहीं हो तो आपको ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको काम नहीं मिलेगा, एंड देन यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज प्रज्ञा तिवारी, एंड द सेम पीपल नाउ come sucking up to you. It happens with everybody, I think. We all have been there, and it has happened with all of us. So when did you first decide that हाँ मुझे सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए और कंटेंट भी बनाना चाहिए? So I am from the ज़माना of Orkut. तब सोशल मीडिया नहीं था, वो साइबर कैफे में जाके 50 रुपए देके ऑर्कुट में मैसेज करते थे। बट या देन सडनली दिस होल थिंग ऑफ फेसबुक केम इनटू एग्जिस्टेंस, और तब बड़ा मज़ा आने लगा कि यार हम जो कर रहे हैं और जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो हम सबको बिना एक को फ़ोन किए और बिना एक को मैसेज किए दिखा सकते हैं। सो इट वॉज़ अ गुड थिंग देन। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। फिर फेसबुक से सोशल मीडिया का थोड़ा सा हुआ, बट जब इंस्टाग्राम आया ना, और फेसबुक बेचारा मर ही गया ऑलमोस्ट, मतलब कौन ही पूछता है उसको, तो फिर चीज़ें लिमिट के बहुत बाहर जाने लगी। एंड लेटली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि तबाही हो गई हैं, मतलब जिंदगियां ही बर्बाद हैं, मतलब लोग बर्बाद हैं, सब खराब हो चुका है, बंद कर हो जाएंगे किसी। पीपल हैव बिकम deaf and dumb and blind. They just want more fame on that this आपका पेज पे इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स और इतने व्यूज। लिविंग फॉर वर्चुअल रियलिटी। क्या है यार, लाइफ में बहुत चीजें होती हैं, घर वाले, माँ बाप, पार्टनर, पति, बीवी, बच्चे। Ignoring all of that, ignoring the real life. I will literally no taking names, और I literally know people जो घर में जाके एक दूसरे का मुंह तोड़ रहे होते हैं और गालियां दे रहे होते हैं, मियाँ बीवी बात भी नहीं करते आपस में। बीवी किसी और के साथ लगी है, पति किसी और के साथ लगा है, और हर रोज तीसरे दिन सोशल मीडिया पे उनकी एक प्यारी सी फोटो कपल गोल्स लिख के आ जाए, एंड पूरा ड्रेस्ड कोऑर्डिनेटेड। इज दिस इतना धोखा दे रहे हो यार। सो या आई डोंट लाइक द सोशल मीडिया थिंग राइट नाउ। It's very dangerous. So Pragya is known for her bold looks and beautiful looks. तो लोग कभी ऐसा बोलते हैं कि oh my god you've just reached wherever you reached because of your pretty looks and not because of your talent. लोग क्या बोलेंगे, मैं खुद मानती हूँ इस बात को, मतलब मैं सुंदर लगती हूँ तो फिर ये अच्छी बात है ना यार। बट इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ओनली दैट विच हैज़ ब्रॉट मी वेयर आई एम टुडे। ऑब्वियसली इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। अगर आप अच्छे दिखते हो तो ये बहुत yeah you gain popularity. You have see I am not even a content creator. मैं कुछ भी नहीं लगाती and I have a decent following. I'm sure they're only following for the looks. आप भी बिल्कुल। No, I've said this a million times to you, and I would like to say this on camera. The first person I wanted to become like, I followed and I idolized after coming to Delhi in 2000, early stages of my career,
was अमनप्रीत वाही. मतलब मैं पहले जाती थी आधे घंटे और बैठी रहती थी रिहर्सल की कि जब भी आएगी तो मैं देखूंगी कि ये कैसे चल के आ रही है, इसने क्या पहना है, फ्रॉम व्हाट यू वेयरिंग. आई स्टिल रिमेंबर आई सॉ यू वेयरिंग दिस वाइट कलर का हील्स. आई वाज लाइक यार ये हील खरीद लेती हूँ, मैं भी इसके जैसे लगूंगी. फिर मुझे पता चला वो 4,000 रुपये की. मैंने कहा 4,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी. आई आस्क्ड यू, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट दोज हील्स. I remember. I told you also. मैंने 10 साल संभाल के रखा था, फिर वो सड़ गई बेचारी. They were one of my most favorite heels. A lot of other times I have just like I've been staring at you and wanting to just notice and observe कि कैसे आप बात करते हो, कैसे आप उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे का. I just wanted to become a little bit like. So sweet, love you, my doll, love you, and you're such a doll yourself now. तो कभी किसी मेकअप और फिलर्स के बाद सब बन जाते हैं. हाँ, very nice. सारी दिल्ली सुंदर हो चुकी है, सब सुंदर है अब सुंदरता का कोई वो रह ही नहीं गया है. I know. Like I don't say that it's a bad thing, but actually you don't really मतलब अब आप ये नहीं कह सकते. जैसे क्या होता है ना, पहले देखा हीरोइन होती थी, हेमा मालिनी सुंदर थी या रेखा जी सुंदर थी या श्रीदेवी. People have really become self-aware. 10 में से 3 हीरोइनें थोड़ी ज्यादा सुंदर. अब 10 में से 10 हीरोइनें हैं, 10 की 10 सुंदर है और सब सेम लगती हैं. सब सेम लगती हैं बिकॉज यू हैव द सेम प्रोसीजर्स. So much exposure, so many treatments, everyone's looking like a Barbie doll. एंड देन जो थोड़ी बहुत कसर डरमैट और एस्थेटिशियंस और फिलर्स छोड़ देते हैं, वो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स पूरे कर देते हैं. इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी कुछ बच जाए तो स्नैपचैट पे फोटो खींचेंगे उसके फिल्टर में, उसको सेव करेंगे, फिर उसमें एक और फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम पे डालेंगे. क्या है यार, So many apps, उसके बाद भी तो एडिट हो जाती है पिक्चर के बाद. मेकअप आर्टिस्ट यू सी नाउअडेज दे आर ऑल. या तो प्रज्ञा, कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने आपके साथ फेक फ्रेंडशिप दिखाई हो जस्ट फॉर ओनली अ कोलैब एंड उसके बाद लाइक इग्नोर? मैं इतनी बड़ी कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरे साथ कोलैब करने के लिए मेरे साथ फेक फ्रेंडशिप करेंगे. बट या आई थिंक 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर सर्कल इज दे आर ऑल फेक एंड दे आर नॉट friends. They're just a bunch of people trying to get more and more famous and get more attention. That's another scam of influencer, the so called influencer industry. वो दिखा कुछ रहे हैं. कल मैंने एक रील देखी, there was this really fat girl, okay, really fat girl, और उसने अपने राइट लेफ्ट दिखाया बिफोर और फिर आफ्टर दिखाया, बहुत पतली हो गई थी. एंड फिर वो पीछे वो मोटी वाली गर्ल चल के आ गई. मतलब दिस इज व्हाट. Do you get it? What people are trying to show and what reality? People are only trying to show. People are only trying to show what is selling. Yeah. See, आज की डेट में अगर आप कोई जेन्युइन अच्छी या सीधी सादी सिंपल चीज़ करोगे, इट इज़ नॉट सेलिंग, वो वायरल नहीं होगी. लेकिन जितना कूड़ा, जितना गंद, जितना अंड बंड छंड आप डालोगे, वो सब फेमस हो जाएगा. तो भाई जब गू खरीदने वाला है तो कोई बेचेंगे ना यार, और क्या करोगे. You know, in our time, we did not have filters in Instagram, but we had Photoshop. Okay, so I No, also what Photoshop? Only professional photographers could do some photo. हम तो not of not. every magazine or in every picture, not ramp. In a shoot, I always used to look perfect. So people used to say, you know, you models, हमें आप एक ऐसी reality दिखा रहे हो जो achievable नहीं है for a normal person. और अभी influencers भी तो वही कर रहे हैं. It's aesthetics, lip job, ये job, वो job, and they're showing you Kardashians. They're showing you the most perfect beauty, and लोग उससे influence हो रहे हैं. And मैं ये नहीं कह रही हूँ सब कुछ negative है. But you know, a lot of young girls are getting influenced by their whole scenario. So what do you think about this culture? I think this whole business of ये जो aesthetic things, plastic surgery is a little too much. अभी तो fillers और botox. क्यों? People rhinoplasty तो लोग left, right and center. जो भी इसके अंडर जो भी चाह जाता है. जानवी, मोनी रॉय, I mean if you look at their before and after, they're like. जानवी से ज़्यादा drastic transformation उसकी बहन का है, खुशी. So yeah. So it is a very personal choice. आप अगर afford कर सकते हो to look pretty, you spend your money or you get things done on your body, whatever you want to. It's your body, it's your money, it's your choice. But I think people have started doing it a little too much. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवर. हाँ, मतलब कुछ लोगों को तो. And some people have turned into disaster. That's what I'm saying ना. मतलब वो एप से हम ह्यूमन बन गया, अभी करा के वापस एप बनने का प्लान बना रहे हैं. एंड देन वो भी क्या ही करेंगे. डॉक्टर्स, आई नो माई डॉक्टर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती, हम भी करते हैं. मतलब मैंने भी लिप फिलर कराया जो मुझे अच्छा लगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कराया. लेकिन जैसे वो मुझे बताती हैं कि देयर आर गर्ल्स हु कम एंड देन दे टेल मी कि ये ऐसे कर दो, और मैं उनको बोलती हूँ कि ये ऐसे नहीं करना, आपके फेस के लिए नहीं अच्छा लगे, बट देर नहीं ऐसे कर दो.
तो अब वो भाई वो पैसे दे रही है, वो डॉक्टर वो वही करेगी ना कि जैसे अच्छेगी। अब मैं दुल्हन हूँ, मैं कहूँगी मुझे रेड लिपस्टिक लगाओ, तो आप रेड मेकअप आर्टिस्ट रेड लिपस्टिक लगाएगा, वो बोलेगा नहीं आपके फेस पे सूट नहीं करता, आप पीच लगा लो, नहीं मुझे रेड लगा। सो क्या कर सकते हैं? सो पीपल आर गेटिंग थिंग्स डन अ लॉट और बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों के मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो अभी शुरू हुई हूँ और ये एक ही चीज़ में अभी इन्वॉल्व हुई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले टाइम में क्या आपको देगी, साइड इफेक्ट्स देती हो तो अगर, बट अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। कराया आपने कुछ अभी? हाँ मैंने लिप फिलर कराया एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। और कुछ तो दे वर गुड पहले भी, बट आई लाइक अ लिटिल मोर प्लम्प, बट और कुछ नहीं कराया क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेरी फटती है, मुझे लगता नहीं यार ठीक है, इतने से वैसे भी अच्छे लगना है, सुंदर लगना है। हाँ पीपल आर गोइंग ओवरबोर्ड, दैट इज। तो अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर स्कैम लोगों को बताना हो, द ऑप्शंस आर लाइक what will that be जो एक्सपोज करना चाहते हैं? फेक फॉलोअर्स, कितने सारे बताऊं? फेक गिवअवेज, पेड पीआर, ये सब है। फेक फॉलोअर्स है, फेक व्यूज है, फेक कमेंट्स है, फेक शेयर है, लाइव में आप फेक ऑडियंस खरीद सकते हो, सब कुछ हो रहा है। वो जो ये फॉलोअर्स आगे, ओ माय गॉड आज 300 फॉलोअर आगे स्टोरी डालती, वो 300 भी उसी ने 200 रुपये देकर के तुम्हें भिजवाए हैं, तो वो तो है ही है। बट आई थिंक द बिगेस्ट स्कैम विच इज द ईजीएस्ट टू catch hold of and still nobody is talking about is these beauty industry influencer, whether it is makeup artist or whether it is products and services के promoters। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एडिटेड वीडियोस डाल रहे हैं, फिल्टर की वीडियो, या फिर फिल्टर नहीं है तो फिर वो एडिट करके, और स्किन केयर या फिर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं पता नहीं वो कैसे अंधे लोग हैं कि उनको दिख नहीं रहा है कि ये फिल्टर है यार, उसके लिए तुम्हें वो 1000 रुपए की क्रीम नहीं चाहिए, बस वो फिल्टर फ्री का चाहिए, तुम भी वैसे ही लगोगे। एंड पीपल हैव रियली स्टूप डाउन टू अ लेवल कि मतलब वो अलग अलग एप्स में उसको एडिट करके वो डाल रहे हैं, और मतलब हर तीसरे दिन just looking like plastic, I don't know what। तीसरे दिन इनका फेवरेट प्रोडक्ट बदल जाता है। ओ माय गॉड दिस हैज डन वंडर्स टू माय स्किन, 2 दिन यूज नहीं किया तुमने, ओ माय गॉड दिस तो हैज चेंज माय लाइफ। कहाँ का तुम्हारा लाइफ चेंज हुआ है? कुछ I think you're just making me laugh so no, but tell me if I'm wrong. You open the story of top 5 influencers of the city and you will see कि वो कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। ये 10 करोड़ के घर में रहते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं, और ये 500 रुपए की चीज तो मैं ऐसे बेचेंगे जैसे उससे अच्छा तो कुछ है। exactly। मतलब अच्छा ठीक है, ये भी समझ आता है कि यार नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव स्टफ, सो इफ देयर इज अ गुड थिंग, गुड स्टफ रीजनेबल अमाउंट में, तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपनी ऑडियंस को चाहते हो कि वो खरीदे, लेकिन उसके रिजल्ट जो आप दिखा रहे हो तो है नहीं है। आधी दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप, ओ माय गॉड आई एम लविंग द मेकअप डन, मेकअप कहाँ है, उसमें तो फिल्टर है, या तो रियल मेकअप दिखाओ। वो ये देखो मैंने स्किन में लगा लिया, मेरी ग्लास स्किन बन गई, वो भी तो फिल्टर में है, प्रोडक्ट का तो रिव्यू है ही नहीं। तो मैं भी अपना मेकअप फिल्टर में डालती हूँ, बट आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, नीदर एम आई सेलिंग माई आर्ट, सो इट डजंट मैटर। बट इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और इफ आई एम गेटिंग माई मेकअप डन फ्रॉम समबडी एंड आई एम प्रमोटिंग हर मेकअप इन अ फिल्टर, आई थिंक इट्स एथिकली रॉन्ग एंड एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। और एक दूसरे से पीछे से सबको गालियाँ देना सबके बारे में, और खुद भी वही काम करना, तो ये तो गंद मचा ही हुआ है। तो यू नो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम, आजकल काफी लोग सोशल डिटॉक्स कर रहे हैं। तो अगर कल प्रज्ञा अपना वो सोशल डिटॉक्स भी सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए कर रहे तो अगर कल प्रज्ञा बोले कि ओके अमनप्रीत मैं थक गई हूँ सोशल मीडिया से, आई वांट टू डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया, तो व्हाट विल यू मिस द मोस्ट? फेम, ऑडियंस, या कुछ और? I will miss the comment section of the meme pages that I really spend a lot of time on. उसके अलावा कुछ नहीं है सोशल मीडिया पे, सब गंद और फेकनेस है। तो प्रज्ञा आपकी फैमिली में आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम कौन है? Everybody, my whole family is amazing. They've always supported me, and they have just been so good, no matter how much kachra I do in my life. They always have stood by my side. My mom, my dad, both my brothers. So yeah. Then when did they say okay Pragya now you've done it, अब तू बहुत सुपरस्टार बन गई, अब तू एंकरिंग को करियर बना सकती? Never. उनके तो जो करना करो खुश रहो, जो करना करो खुश रहो, हमें हमारे बच्चे दुखी नहीं दिखने चाहिए, जो काम करना है करो, जैसे रहना है रहो, बस खुश रहो। तो जब किसी बड़े सेलिब्रिटी के इवेंट को आप एंकर करते हो तो हु इज द मोस्ट एक्साइटेड इन योर फैमिली, योर सन और मदर, फादर? My son is a little too it's too early for him to get exposed to these things, तो मैं उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती दिखाती, बट हाँ वो कभी कभी जान जाता है तो वो एक्साइटेड होता है। बट आई थिंक इट इज़
It is my mom and my brothers. My papa has no idea कि ये कौन हीरो है कौन नहीं, उनको तो पता भी नहीं होता. He doesn't even know there is a thing called Instagram. So when you're traveling and busy, who's taking care of your son, and he's okay with all of that? Me, and most of the time me. But if I'm not around for a longer period of time, either my mom is at home or my papa comes sometimes. So he has full Or my family brother, support. or my भाभी और my छोटा वाला भाई. In fact, मेरे मतलब Vadan has been brought up in his initial years by my सबसे छोटा वाला भाई only. He has done his tati potty susu diaper dudu सब कुछ. So that's why you can work peacefully, ना? क्योंकि My family is 110% supportive always. They have never ever said anything to me. जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, खुश रहो और ऐसा रहो कि बस कोई तुम्हें अंदर से तकलीफ ना खाए. Okay, so a lot of men want to know that this beautiful girl is single or married. Single. Very nice. So okay, so you were married before. Yes. So शादी के बाद आपकी relationship में सबसे बड़ा learning experience क्या रहा? Don't rush into it. Take your time, think about it, observe, पता करो, जानो, समझो, पूरा जितना टाइम चाहिए लो. Only when you are like a 2000% sure, then because आप अफेयर्स कितने भी कर लो, ब्रेकअप हो जाएगा, भूल जाओगे, बट शादी को आप अंडू नहीं कर सकते. तो जब शादी थी, were you an anchor then as well? Yeah. So do you think that played somewhere a role in you? Okay. My career played a role in destroying one of my most precious relationships before my marriage, because according to their family this was not a very respectful profession and they would not want a daughter-in-law जो कि उनके हिसाब से आधे कपड़े पहन के स्टेज पे 2000 लोगों के सामने खड़ी रहती है. बट इट्स ओके, वी टुक इट ऑन अ गुड नोट कि ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं. इफ दे आर नॉट ओके, सो इट वाज ओके. बट माय करियर नेवर हैड एनीथिंग टू डू विथ माय ब्रोकन मैरिज. नो. Okay, Pragya, with this question, we have come to the absolute last but not the least section of our episode, of our podcast, which is called the Rapid Fire. But उससे पहले आप हमारे audience को, all the young beautiful girls who want to be a TV anchor, मैं ये advice दे के मर गई हूँ, तो please आज तेरी turn है. What would you suggest to them? Go for it. Just give it all of you and there will be returns. अगर आप मेहनत करोगे तो आप जहाँ डिज़र्व करते हो, जितनी आप मेहनत करो वहाँ पहुँच ही जाओगे, बिना किसी के सपोर्ट के भी, बिना किसी के फेवर्स के भी और बिना किसी के एहसानों के भी. बट ये आपको चूज़ करना है कि आप किस हद तक गिरना चाहते हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो. आप नहीं गिरना चाहते हो, आप पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है. आप वहीं पहुँचना चाहते हो, आप गिर भी सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है. आई और यू और एनीबडी इज नो बडी टू टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बट डू थिंग्स दैट विल मेक यू लिव इन पीस. कि जब आप अपने आप को शीशे में देखो तो आपको देख के लगे कि हाँ यार, मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया. आपको अपने आप को देख के शर्म नहीं आनी चाहिए. ऐसे सारे काम करो, ये वाला काम मत करना कि जब आपको खुद के लिए गिल्टी फील होने लगे. Oh, lovely. So now our rapid fire, you're not allowed to think too much. वैसे भी you're a rapid fire on your own only. My first ever podcast and I'm so ready for it. Yes. अगर आप एंकर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं शायद IAS ऑफिसर होती, या मैं डॉक्टर होती, या मैं स्पोर्ट्स पर्सन होती. एक सेलिब्रिटी जिसे होस्ट करना एक ड्रीम मोमेंट होगा जो अभी तक नहीं किया. अभी तक जिसे नहीं किया है, आई थिंक, ओ गॉड, सॉरी, हॉलीवुड भी हो सकता है. नहीं, हॉलीवुड कहाँ जा रही हूँ मैं, यहीं ठीक हूँ. आई थिंक अमिताभ बच्चन, वेरी सीनियर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल, इज अ बिग मैन. सो या. सबसे बड़ा मिथ जो लोग एंकर्स के बारे में मानते हैं कि सब पैसे लेके सो जाती हैं. लाइक दैट. अगर आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन सकती हो जो अभी नहीं है तो वो क्या होती? मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ. वेरी नाइस. सिंगल लाइफ बेटर है या कमिटेड लाइफ? सिंगल. बट आई मीन इट्स अ वेरी complicated answer. For some it's single, for some it's committed. For me it's single. I decide to decide how I want to live. So that's. So किस सेलिब्रिटी ने आपको ज्यादा इम्प्रेस किया है? Impress as in just the whole aura, their career path and their family. Ranveer Singh, yeah, such a lover boy he is. ऐसा कोई प्यार करने वाला मिल जाए, मजे ही आ जाए लाइफ के. अगर किसी रिलेशनशिप में एक रूल सेट करना हो तो वो क्या होगा? Only one rule for all relationships, and आप जितनी भी चीज़ें बोल लो सबके आगे यही भारी है. You only do that thing that you can accept from your partner. आप गाली दो जब आप उससे गाली सुन सकते हो, आप चीट करो जब आप उसका चीट ले सकते हो, आप हाथ उठाओ जब वो आपको मारे तो आपको चलेगा. So if you think you can take that from your partner, do it for your partner. If you cannot take a thing from your partner, don't do it to your partner. तो आज तक का सबसे वाइल्डेस्ट डीएम जो सोशल मीडिया पे मिला हो?
वाइल्डेस्ट यार, रोज ही घटिया घटिया सारे डीएम आते रहते हैं लोगों को, कोई काम नहीं, बैठ के डीएम में यूर हॉट, यूर सेक्सी, लेट्स मीट फॉर कॉफी, ये वो करते हैं। अरे यार अपना काम करो ना यार, क्या मतलब को। अच्छा, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, सबको करते हैं कमेंट्स और ये सब व्यूज़, बट आपको एक इंसान नहीं अच्छा है आपके पास जिससे आप एक्चुअल कनेक्ट कर सको, तो क्या फ़ायदा? ये सब बकवास है, ये सोशल मीडिया बकवास है। तो ऑल राइट प्रज्ञा, you were an absolute firecracker. Loved having you on our show. It was fantastic. It just felt like two friends have connected after so long and chatted their heart out. And I love the way you were so frank about everything, open heart. This is what we. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई। क्या? हाँ, सो हैव यू टॉकिंग अबाउट दिस इन्फ्लुएंसर्स थिंग ना, जाने से पहले थोड़ा तो बोल ही देती हूँ। नाउ 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आप देखो, गर्ल्स, बॉयज़ को तो मैं ज़्यादा जानती नहीं इन्फ्लुएंसर्स कौन है, दे आर शोकेसिंग लग्जरी एंड लाइफस्टाइल that they have not bought from their own, जो उनके पास है ही नहीं। मतलब तुम सड़क से घर में रहते हो, सड़क से गाड़ी चलाते हो और 10 लाख का बैग लेके घूम रहे हो और बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास अगर कोई ढंग का घर और रंगी गाड़ी भी आ गई, वो भी किसी और का दिया हुआ है, तो हस्बैंड का और पापा का पैसा हो तो चलो ठीक है यार, वो हक है, बट और पता नहीं कहाँ से सोर्सेज हैं, उनसे ली हुई चीज़ों की आप दूसरी लड़कियों को पुट डाउन कर रहे हो जिनके पास वो नहीं है। सबसे गंदी चीज़ मुझे ये लगती है। एंड फेकनेस की तो मतलब हद ही पार कर रखी है, नकली चीज़ों के भी लोग असली वीडियो डाल देते हैं और दे हैव द ऑडेसिटी टू फकिंग पुट इट ऑन द पेजेस, आई बॉट दिस, अरे वो सबको पता चल रहा है तुम्हारी पैकेजिंग देख के, उसमें से जो प्लास्टिक के थैले निकल रहे हैं वो ओरिजिनल बॉक्सेस में नहीं निकलते हैं। सो पीपल नो व्हाट इज फेक, एंड आई हैव फेक स्टफ एज वेल, आई हैव बॉट इट, आई हैव ओरिजिनल एज वेल, आई नो वेयर टू कैरी व्हाट, बट मैं अपने फेक वाले को, कोई मुझे पूछे कहाँ से, तो बता दिया यार जीके से लिया है, 5,000 का लिया, मैं नहीं बोलूँगी ओ ये 5 लाख के लिए मैंने इस मॉल, दुबई मॉल से लिया, नहीं, सच बोल दो ठीक है। एंड झूठ बोल करके सबको पागल बनाए जा रहे हैं, और जो बच्चे बन रहे हैं पागल, वो झूठ देख के यूं ही पागल हो जा रहे हैं। ये बंद करवाना चाहिए, इसको बंद करो, ये बहुत जरूरी है, इसको बंद करो। Totally agree. इनके ऊपर केस होने चाहिए। बिल्कुल। So you know, talking about this influencer culture, मुझे ऐसे लोग भी पता है जो इकोनॉमी में बैठे होते हैं और फिर क्लास में, और फिर जो हमारे बिजनेस क्लास में वो फर्स्ट क्लास का बार देखा है, वहाँ पे खड़े होकर जल्दी से फोटो खिंचा लेते हैं, ट्रैवलिंग एंड फिर वापस इकोनॉमी में जाके बैठ जाते हैं। सिमिलरली दे आर डूइंग दैट विद प्राइवेट जेट्स एंड बेंटलीज एंड जस्ट पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द कार्स, एंड घर है उनका 100 गज का पता नहीं कौन सी मंडी में जाके। So what do you have to say about that? अब इसमें बोलना क्या है? I mean yes, people are doing it. In fact, आप तो फिर भी बता रहे हो कि वो आ करके मिलने के बहाने फोटो खींचे। There are people who are just editing the background in your picture and posting it. So yeah, I mean तुम बिजनेस जा रहे हो, तुम इकोनॉमी जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है यार? अगर तुम अपने पैसे से 10,000 की टिकट जा रहे हो, वो बहुत अच्छी है। अब तुम कहाँ से किस से कहाँ के क्या करवा के जा रहे हो, तो फिर तो क्या ही उसकी बात करेंगे। एंड एज फार एज दिस फेकनेस अबाउट घर, गाड़ी, व्हाटएवर, ये लग्जरी ट्रिप्स, मतलब जो इंस्टाग्राम पे जो लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये सच में पॉसिबल है एक सीधे साधे तरीके से? नहीं यार, मतलब कुछ लोगों के तो बस पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से समझ ही नहीं आता। मतलब हस्बैंड क्या करता है पता ही नहीं, बीवी क्या करती है पता ही नहीं, बस पैसे खर्च हो। अरे भाई तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं कितनी भी करोड़पति होंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं हर हफ्ते एक 10 लाख का बैग खरीद लूंगी और हर महीने 25 लाख का ट्रिप कर लूंगी। वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? Really, I want to be under that tree also. I mean, I make a lot of money, but मुझे साल के 2 ट्रिप करने होते हैं, तो उसमें भी मैं चूज करती हूँ कि यार ये वाला में लंबी फ्लाइट है तो इसमें बिजनेस की टिकट खरीद लेती हूँ, इसको इकोनॉमी में चली जाती हूँ, 2-3 घंटे में हो जाए। एंड आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज दिस मनी फ्लोइंग इन फ्रॉम, कि हर तीसरे दिन एक 5 लाख का बैग खरीद रहे हैं, हर चौथे दिन एक 2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा भाई? कहाँ बरस रहा है? हम भी लूट लें। सो पीपल हैव जस्ट learned to show things in a way कि it looks very expensive and luxurious, जबकि असल में इनके लाइफ में सुख चैन नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब कैसी ज़िंदगी होगी यार तुम ऐसे जी रहे हो तो। बट ठीक है, अगर उनको इसी में खुशी है ये दिखा के कि मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। Who knows what the truth is? So मेन खुश रहने से मतलब है। गाड़ी जो कि हम बहुत हैं। हाँ, I always say this, I am so happy, so content. मुझे लगता है मैं तो भगवान जी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। मेरे को I also feel like that. परेशानी कभी नहीं। I also feel like that. Really, I also feel I'm God's favorite child. And you are a part of the biggest, rich my God. girls of the city. You know the reality. मतलब richest of the खरबों को पतियों की बहुएं हैं, और 500 का नोट नहीं निकलता इनकी किट्टियों में। 200 रुपए के लिए
मिनटों में लड़ाई Really, करते my हैं। God, it's crazy. It is crazy. Very well said. So, with that note, this is the end of our episode, our podcast, our amazing podcast with my beautiful, cute heart friend Pragya Tiwari. This is your host Amanpreet Wahi signing off on our podcast on Edge Talks Season 3. Don't forget to follow and subscribe.